टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। નમસ્કાર, સમાચાર સાથે હું હિના। સૌથી મોટા સમાચારથી બુલેટિનની શરૂઆત કરવી છે। ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ મોન્ટુ પટેલ સામે તપાસ। સીબીઆઈ અમદાવાદથી તેમના બંગલે દરોડા પાડ્યા હોવાની વિગત છે। દરોડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। જે આરોપ લાગ્યો છે તે કોલેજોને માન્યતા આપવાના મુદ્દે લાંચ લેવાના આરોપ છે। દિલ્હીમાં પીસીઆઈ ઓફિસ અને મોન્ટુ પટેલના નિવાસસ્થાને તપાસ। કમ્પ્યુટર ફાઇલ સહિતની સામગ્રી જપ્ત કરાઈ હોવાની વિગતો છે। માળખા વગરની 23 કોલેજોને મંજૂરી આપી હતી। 4000 કરોડથી વધુનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યાનો આરોપ લાગ્યો છે, જે મામલે તપાસ ચાલી રહી છે। કોલેજ દીઠ 20 થી 25 લાખ રૂપિયા લેવાતા હોવાનો આરોપ છે। ખોટી રીતે અધ્યક્ષ પદ મેળવ્યાનો આરોપ છે। જો કે આ જે આખો સ્કેમ થયું છે તેમાં મોન્ટુ પટેલ હાલ ફરાર છે। ઉલ્લેખનીય છે કે મોન્ટુ પટેલ ભાજપના યુવા મોરચા સાથે સંકળાયેલ છે। 4 વર્ષ પહેલા તે પીસીઆઈમાં સૌથી નાની વયે પ્રમુખ બન્યા હતા। એટલું જ નહીં, આ સંસ્થાનું નેતૃત્વ કરનાર તેઓ પહેલા ગુજરાતી છે। મોન્ટુ પટેલે વર્ષ 2022-23ના વર્ષમાં લગભગ 4000 કરોડથી વધુનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યાનો આરોપ ફાર્માસિસ્ટે લગાવ્યો છે। વર્ષ 2022-23માં કેટલાક ફાર્માસિસ્ટ દ્વારા તે વખતના કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાને આ અંગે રજૂઆત કરાઈ હતી। ત્યારબાદ હાલના કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન જેપી નડ્ડાને પણ ફરિયાદ કરાઈ હતી। સમગ્ર મામલે અગાઉ પણ સીબીઆઈએ મોન્ટુ પટેલ સામે તપાસ કરી હતી, પરંતુ ત્યારે કંઈ હાથ લાગ્યું ન હતું। પરંતુ હવે સમગ્ર કેસમાં તપાસનો ધમધમાટ હાથ ધરાયો છે। તપાસમાં દસ્તાવેજોની ચકાસણી, ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, લાંચના આરોપો સાથે સંકળાયેલા પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે। જો કે સીબીઆઈએ દરોડા પાડતા જ મોન્ટુ પટેલ ફરાર થઈ ગયો છે। તો આખો જે સ્કેમ સામે આવ્યો છે, મંજૂરીનું મહાકૌભાંડ સામે આવ્યું છે, તેને લઈને ડોક્ટર ગોપાલ ભૂતડા ઉપાધ્યક્ષ છે મેડિકલ સેલ ભાજપના, જેઓ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ગોપાલજી, આપકા સ્વાગત है। તો ફરી એક વખત સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું, પરંતુ આપને જણાવી દઈએ કે મોન્ટુ પટેલે ગુજરાત સહિત દીવ દમણની મેમ્બરશિપ રાખી હતી અને જે આક્ષેપ લાગ્યા છે એ અમે આપને જણાવી રહ્યા છે। વર્ષ 2022-23માં 4000 કરોડથી વધુના ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ છે। પૂરતા કર્મચારી હોવા છતાં સુવિધા માટે 100 નવા લોકોની ભરતી કરી। જરૂર ન હોય છતાં દિલ્હીમાં 117 કરોડની નવી ઓફિસ શરૂ કરી। ઓફિસર રજીસ્ટ્રેશન માટે રૂપિયા 20 થી 25 કરોડનો ખર્ચો કર્યો। આ બધું જ ગેરકાયદેસર હતું। ભરતી કરાયેલાઓના પગાર સહિતના ખર્ચા પીસીઆઈએ ચૂકવતા ભારણ વધ્યું। કોંગ્રેસના નેતાના નામે 300 કરોડની પ્રોપર્ટી લીધાનો પણ આરોપ મોન્ટુ પટેલ સામે છે અને આ તમામ એંગલથી હાલ તપાસ થઈ રહી છે। બીજા રાજ્યમાં મેમ્બરશિપ માટે અન્ય રાજ્યમાંથી રાજીનામું જરૂરી છે। મોન્ટુ પટેલે ગુજરાત સહિત દીવ દમણની મેમ્બરશિપ રાખી છે અને હાલ તો સીબીઆઈ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી છે। નિવાસસ્થાને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। 4000 કરોડથી વધુનો આજે આખો કૌભાંડ થયો છે, તેની તપાસ ચાલી રહી છે। પૂરતા કર્મચારી હોવા છતાં લોકોની ભરતી કરતો હતો, જરૂર ન હોવા છતાં ઓફિસ રાખી હતી કરોડોની, અને આપને જણાવી દઈએ કે એ ઓફિસર રજીસ્ટ્રેશન માટે પણ 20 થી 25 કરોડનો ખર્ચ કરાયો હતો। ભરતી કરાયેલોના પગાર સહિતના ખર્ચા પીસીઆઈએ ચૂકવતા એક ભારણ વધ્યું હતું, જે ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા નુકસાન ખૂબ મોટું હતું, ભ્રષ્ટાચાર ખૂબ મોટો હતો અને આખું જે સ્કેમ સામે આવ્યું છે તેને લઈને હવે સીબીઆઈ તપાસ કરી રહી છે। પરંતુ આખી ઘટનામાં મોન્ટુ પટેલ ફરાર છે। મોન્ટુ પટેલનો હાર કોઈ જ અતોપતો નથી। જો કે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન પણ કર્યા છે। ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ મોન્ટુ પટેલ સામે તપાસ કરાઈ રહી છે। સીબીઆઈએ અમદાવાદ સ્થિત તેમના બંગલે દરોડા પાડ્યા છે। ત્યારે ગોપાલ ભૂતડા ઉપાધ્યક્ષ છે मेडिकल सेल भाजपना, તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરીએ। डॉक्टर गोपाल, आपका स्वागत है। नागपुर से सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम। बिल्कुल
डॉक्टर गोपाल, एक बात की जानकारी ये चाहिए कि मेडिकल क्षेत्र को लेकर ये सबसे बड़ा स्कैम है, क्या प्राथमिक जानकारी है आपके पास अभी तक? मेरे मेरे हिसाब से 1947 से जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में इससे बड़ा कोई स्कैम हुआ नहीं होगा। उसका मैं आकलन आपके सामने पेश कर रहा हूं। हर वर्ष फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करीबन 3,000 कोर्सेस और कॉलेजेस को अप्रूवल देता है। और मोन्टू भाई एक कोर्स से 25 लाख से 50 लाख के बीच में लेते हैं, इसकी जानकारी है। अब आप मल्टीप्लाई करिए 3,000 कोर्सेस और 25 लाख रुपए एक कॉलेज से कम। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है तो 50 लाख रुपए लेते हैं। अब 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख भी करेंगे तो कितना बड़ा अमाउंट एक वर्ष का होता है। और उसके बारे में मैंने मेरे ईमेल आईडी से प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ईडी, सीबीआई सबको प्रूफ लगा के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भेजे हैं। नागपुर के आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के संबंध में जब नवंबर 2022 में मैंने मोन्टू भाई को ईमेल किया, उनको फोन करा, उसके बाद में उन्होंने रातों रात बगैर किसी ऑफिशियल प्रस्ताव के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध में जाके उन्होंने उस कॉलेज को अप्रूवल लेटर दिया। अब रातों रात अगर अप्रूवल लेटर मिलता है तो बगैर धनराशि के तो मिलेगा नहीं। और उसके बाद में उस कॉलेज के प्रति संपूर्ण जांच हुई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिटेल जांच करके सैकड़ों पन्ने की जांच रिपोर्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को 8/8/2023 को भेजा। अब 8/8/2023 से जिसके अंदर में ये निरूपित हुआ, ये सर्टिफाइड हुआ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रॉड तरीके से, बोगस तरीके से मान्यता दी। जब इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मोन्टू भाई के रिकॉर्ड पे आ गए 8/8/2023 को, तो 2023 से लेकर 2025 खत्म हो रहा है जी, तो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं। आप बताइए इस बात को। ईडी, सीबीआई ने सारी जांच करना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सस्पेंड करना चाहिए, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का कमीशन वहां पे एडहॉक बॉडी पर बैठना चाहिए। और ये हजारों नहीं लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार है, लाखों करोड़ का। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अमित भाई शाह, इन्होंने इस मैटर को अभी ओपन करा है। इसकी तह तक जाना चाहिए। और ऐसे लोकतंत्र पर जो कलंक है, उस व्यक्ति पे कोई भी रहे वो, उस व्यक्ति पे मजबूत कार्रवाई होना चाहिए, जिससे पूरे देश में एक सबक जाए कि मोदी जी का जो प्रिंसिपल है, जीरो टॉलरेंस अबाउट करप्शन, उसको हमारी भारतीय सरकार, भारतीय न्याय व्यवस्था। बिल्कुल गोपाल जी, यहाँ पे ये सवाल होता है कि आपको कब पता चला कि मोन्टू पटेल ने इतना बड़ा स्कैम किया है? आपके पास कोई प्रूफ सामने आया था? आपने कुछ देखा, आपने कुछ जांच की, और किन किन को बताया गया था कि इतना बड़ा स्कैम मेडिकल क्षेत्र में हुआ है? जी, जब नवंबर 2022 में मैंने मोन्टू जी को फोन करके बताया कि भाई आप यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज बोगस आ रहा है, तो उन्होंने बोला मैं बोगस कॉलेज को परवानगी नहीं दूंगा। नवंबर 2022 में उसका मैंने ईमेल भी करा। फिर अचानक से 29 दिसंबर 2022 को 1.5 महीने में मोन्टू भाई ने उस कॉलेज को रिश्वत लेके ही अप्रूवल लेटर दिया होगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जांच करी, स्टेट गवर्नमेंट ने जांच करने के बाद में 8/8/2023 को पीसीआई को पत्र भेजा कि आपने फ्रॉड अप्रूवल दिया, इसको आप विड्रॉ करिए। तो 8/8/2023 से आज तक डॉक्टर मोन्टू कुमार, उनकी पीसीआई की टीम उस पत्र को दबा के बैठी है। और उस संबंध में मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, ईडी, सीबीआई, मोन्टू कुमार जी को, पीसीआई को, करीबन 250 लोगों को, गवर्नमेंट एजेंसी को ईमेल किया। ये हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है, उसके सहारे मैंने प्रूफ जोड़े। उसके बावजूद भी आज तक डॉक्टर मोन्टू कुमार ने ना वो संस्था चालक के ऊपर में एफआईआर करी, ना उस कॉलेज की अप्रूवल, बोगस अप्रूवल पीसीआई के द्वारा दिया गया उसको विड्रॉ करा। समय समय पे मैंने सैकड़ों ईमेल, 300 ईमेल करे मैंने, 300 ईमेल। अभी आप कल्पना करिए, एक भाजपा कार्यकर्ता को 300 ईमेल करना पड़ता है, कितना हमारे भारत सरकार के निचले स्तर पे अधिकारी वर्ग पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ, इसमें ना मोदी जी, ना अमित शाह, ना कोई हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता इसमें कभी सहभागी नहीं हो सकते, होना ही नहीं है। बिल्कुल। अभी 15 साल से डॉक्टर गोपाल, हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन पाटिल भी જે રીતે ખૂબ જ નાની વયમાં અધ્યક્ષ બન્યા પરંતુ સ્કેમ ખૂબ મોટું કરી દીધું છે। સચિન, આપણી સાથે ડોક્ટર ગોપાલ ભૂતળા પણ ઉપાધ્યક્ષ મેડિકલ સેલ ભાજપના જોડાયા છે। સચિન, हेलो डॉक्टर गोपाल भूतड़ा जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो जिस तरीके से इन कॉलेजेस को मंजूरी दी गई,
अगर ये मंजूरी दी गई है, गलत तरीके से दी गई है, जो इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आ सकता है, सीबीआई पूरे इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके बाद, लेकिन ये वो जो मंजूरी दी गई है गलत तरीके से, तो स्वाभाविक तौर पर यह भी माना जाए कि जो भी सर्टिफिकेट्स जिन जिन लोगों को मिले हैं वो भी गलत है, क्योंकि जहां जहां पर भी कॉलेजेस थी नहीं या ठीक से चली नहीं या शुरू ही नहीं हुई, ऐसी कॉलेजेस को मंजूरी देना, इस तरह की बातें होना, ये कितना गंभीर विषय हो जाता है। और इसका मतलब ये माना जाए कि ये सारे सर्टिफिकेट्स गलत दिए गए हैं, जो अभी 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 लोग उसको लेकर के अपने कार्यकाल भी उन्होंने कामकाज भी शुरू कर दिया होगा। जी 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 सर जी, इसके बारे में मैं आपको दो बड़े बड़े प्रूफ देता हूँ, बड़े जीवंत लाइव एविडेंस देता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक नोमाड यूनिवर्सिटी है जिसका बहुत बड़ा स्कैंडल पूरे इंडिया में गुजरा है। उस नोमाड यूनिवर्सिटी में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के डॉक्टर मोन्टू कुमार ने 6 फार्मेसी कॉलेज की परवानगी दी है, 6, और वहां पे 1 लाख फ्रॉड डिग्री देने में आई। आप कल्पना करिए, 1 लाख फ्रॉड डिग्री अगर देने में आई, जिसको 1 लाख रुपए अगर मिनिमम लिया गया अगर फ्रॉड डिग्री देने के लिए, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख रुपए, कितना बड़ा स्कैंडल है साहब। उसकी भी जांच होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ देता हूं मैं आपको, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के भ्रष्टाचार के मसले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अभी पिछले विंटर में, मतलब 3-4 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, बहुत बड़ी बेंच ने, स्पष्ट शब्दों में स्ट्रिक्चर पास करे डॉक्टर मोन्टू कुमार पीसीआई अध्यक्ष के ऊपर और रजिस्ट्रार पीसीआई के ऊपर कि आप इतना नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं हमारे ऑर्डर का, आप इतनी गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको तिहाड़ जेल क्यों ना भेजा जाए कल। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जब ये बोलता है कि भैया आप कल सवेरे सुप्रीम कोर्ट में आइए, हम आपको तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा स्ट्रिक्चर पास होने के बाद में कौन लोग हैं जो मोन्टू कुमार को बचा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इतने स्ट्रिक्चर के बाद में भी अगर मान के चलिए इस व्यक्ति के ऊपर में कार्रवाई करने में देरी हुई, आप कल्पना करिए। अभी आप बोलिए क्या मैंने ये रिकॉर्ड पे डाला, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का ये वर्षन, ये वीडियो प्रधानमंत्री महोदय से लेके स्वास्थ्य मंत्री से लेके ईडी से लेके सीबीआई से लेके सबके ईमेल आईडी पे मैं ऑलरेडी इसको भेज चुका हूं। और मेरी अभी दरखास्त है पूरे देश से, प्रधानमंत्री महोदय से, भारत सरकार से, ईडी और सीबीआई से। सवाल और है मेरा आपसे, तत्काल मेरे ईमेल आईडी के सारे प्रिंट निकालिए, उसके ऊपर और एडिशनल कार्रवाई करिए, एडिशनल एफआईआर करिए। देखिए, जिस तरीके से मंजूरी दी गई है, ये जो सर्टिफिकेट्स लेकर के जो भी बाहर घूम रहे होंगे, तो वो भी फर्जी ही माने जाएंगे ना। 1 लाख आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स देना, तो वो भी फर्जी माने जाएंगे। तो ये तो और गंभीर मामला हो जाता है कि ये तो पूरे स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र से खिलवाड़ किया इन्होंने, तो ये तो और गंभीर हो जाता है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। करोड़ों विद्यार्थियों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, करोड़ों विद्यार्थियों को बोगस डिग्री दी गई है। ये लोकतंत्र पे और भारतीय शिक्षण संस्था पे, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम पे बहुत बड़ा कलंक है। ये लोकतंत्र पे कलंक है, इसके ऊपर में कड़क कार्रवाई होना चाहिए। और मेरे जितने भी मेरे ईमेल आईडी से ईडी सीबीआई को और गवर्नमेंट देख रहे हैं कि नामजद जो एफआईआर हुई है उसमें नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो इंस्पेक्शन करने वाले जो लोग थे वो भी इसमें शामिल है पूरी तरह से। तो वो इनके ये पपेट है। विश्वसनीयता कहाँ बनी रहती है? ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के विश्वसनीयता तो कहीं रहती है ना, वो लिखेंगे जो मोन्टू भाई चाहेगा, मोन्टू भाई की टीम चाहेगी, और उनमें से दक्षिणा उनको भी जाती होगी। बिल्कुल, उनके प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल लिए जाए, उनके प्रॉपर्टी को भी कब्जा करना चाहिए। डॉक्टर गोपाल, एक सवाल यहाँ पे, सचिन एक सवाल આપણે એ પૂછી લઈએ, જે પ્રશ્ન તમને પણ હશે કે મોન્ટू पटेल એકલો तो હશે નહીં। डॉक्टर गोपाल, मोन्टू पटेल अकेला नहीं हो सकता, ये पूरी लॉबी होगी जिसने ये पूरा स्कैम किया हुआ है। बहुत बड़ी लॉबी है, हाँ जी, बहुत बड़ी लॉबी है। एक हिंदी में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, ऐसी कुछ तो भी कहावत है। सिंगल चना जो रहता है वो आवाज नहीं कर सकता है। इनकी पूरी अली बाबा 40 चोर की टीम है, अली बाबा 40 चोर। ये मिलजुल के सब पूरा कार्यक्रम करते हैं। उसके संबंध के प्रूफ, किस एजेंट ने, किस पीसीआई के सदस्य ने कितने लाख रुपए डॉक्टर मोन्टू कुमार की पत्नी को दिए, वो डॉक्टर मोन्टू कुमार की धर्म पत्नी के हैंडराइटिंग वाले प्रूफ मैंने और गुजरात के बहुत बड़े अन्य विसल ब्लोअर ने ये हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा है, ईडी को भेजा है, सीबीआई को भेजा है, हैंड रिटन। जब डॉक्टर मोन्टू कुमार की धर्म पत्नी की हैंड रिटन प्रूफ अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे है, ईडी के रिकॉर्ड पे है, सीबीआई के रिकॉर्ड पे है, तो उसके ऊपर में एफआईआर क्यों नहीं हुई, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? आप बताइए मुझे। बिल्कुल,
सवाल ऑडियो बहुत भेजिए, मैंने बिल्कुल ऑडियो। डॉक्टर गोपाल, सवाल बहुत है और अब जो सीबीआई जांच कर रही है उसमें एक बात है कि ये स्कैम पूरा किसने किया, कैसे किया, वो सामने आएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी साथ हमारा संवाददाता सचिन पाटी સાથે જોડાયેલા છે। સચિન, હાલ આપની પાસે મોન્ટુ પટેલને લઈને આખા સ્કેમને લઈને શું અપડેટ? હિના, જે આખું સ્કેમ છે જે પ્રમાણે ડોક્ટર ગોપાલ ભૂતડાએ પણ કહ્યું છે અને એ સિવાય પણ એડવોકેટ પંકજ મિશ્રા દ્વારા પણ જે છે એ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી અને એને ધ્યાને લઈને આખી જે તપાસ થઈ છે, તપાસમાં જે પ્રકારના તથ્યો સામે આવી રહ્યા છે, તથ્યો ચોંકાવનારા જરૂરથી છે, કારણ કે જે ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા છે એક વિશ્વસનીય સંસ્થાન કહેવાય, ત્યારે એના તરફથી આ પ્રકારનું સ્કેમ થવું, બોગસ કોલેજોને મંજૂરી આપી અને એ પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં 3000, એ આંકડો ક્યાં જાય છે ને 3000 કોલેજીસને જો મંજૂરી આપવામાં આવી હોય તો એમાં કેટલા એવા વિદ્યાર્થીઓ છે જેમને બોગસ સર્ટિફિકેટ કે બોગસ ડિગ્રી આપવામાં આવી હશે, જેના આધારે તેઓ અત્યારે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, એ ફાર્મસીની પ્રેક્ટિસ છે। ત્યારે આ જે વિષય છે, વિષય એટલા માટે ગંભીર બની જાય છે ત્યારે આ મામલાની તપાસ થવી જરૂરી છે અને આખા મામલામાં કોણ કોણ સંડોવાયેલા છે એ નામજદ એફઆઈઆરમાં નામ પણ છે અને સાથે જ સાથે જે 36 લોકોના નામ છે એ સિવાય પણ કેટલાય લોકો હજુ આમાં સંડોવાયેલા છે। એમાં નેશનલ મેડિકલ કાઉન્સિલના પણ જે ઇન્સ્પેક્શન કરનારા લોકો છે એ પણ સામેલ છે। એ સિવાય યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર્સ, ડાયરેક્ટર અને જે રજિસ્ટ્રાર સહિત સીબીઆઈ આખી તપાસ કરી રહી છે, કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે એ તમામ જે વિગતો છે એ સામે આવશે, પરંતુ મંજૂરીનું આ મહા કૌભાંડ કે જેની પડે પડની અપડેટ અમે આપને આપી રહ્યા છે।